Hello, guys, welcome to the one and only Immortal Era. In this channel, in this video, we're talking about socialism in Europe and the Russian Revolution. So, what do you think about the Russian Revolution? Russian Revolution is mainly about the changes when there was revolutions happening and how Europe was changed drastically by the socialism. So, let us start with the first topic, the age of social change. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. हमने पिछले चैप्टर में यह पढ़ा था कि फ्रीडम के जो पावरफुल आइडियाज़ हैं और यूरोप में जो इक्वालिटी सर्कुलेट हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में वो उसको कितना चेंज करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। जैसे फ्रांस जो था, जब रेवोल्यूशन हुआ था उसमें जो लुई 16 था, उसमें जब रेवोल्यूशन हुआ तो लुई 16 he was killed, right? And there were many changes. And in this chapter we're going to read about how Russian Revolution was happened and why. Okay. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. Like, we got an idea that kings are not forever. We can change that. This was what we learned by French Revolution, right? So, this has also brought a change in Russia. Like, hmm, as you have read, before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controls social power began to be discussed. Like, French Revolution tells us that kings are not um, what we cannot change. Okay, kings cannot be here forever. Like, oh my god, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें ये पता चलता है कि जो किंग्स हैं वो गॉड की तरह नहीं है. दे कैन बी चेंज, दे कैन बी रिमूव्ड. ओके, सो ये बहुत ही चेंज करता है यूरोप को और एशिया में. जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो समझ पाते हैं लोग कि इंडिविजुअल राइट्स होते हैं कुछ, ठीक है, किंग कुछ नहीं होता है. और जो खुद के राइट्स हैं वो तो खुद के राइट्स होते ही हैं ना. तो इंडिया में जो राजा राममोहन राय थे और देरोजियो, उन्होंने सिग्निफिकेंस के बारे में बातें की कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में और पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप में क्या डिफरेंस है, उनके आइडियाज़ में क्या क्या फ़र्क आए. And the developments in the colonies in turn reshaped these ideas of societal change. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Like Europe में, हाँ, they knew that kings could be removed and there could be change in the country, but every person in Russia did not accept that change was necessary. Okay, they knew that developments are necessary and uh, the country will change. Okay, but there were conservatives, liberals, and radicals. Their views were different. Okay, like some wanted change, but slow change, not a drastic change. And this is what makes it interesting. If everyone was like, okay, yes, this is the final thing, then it might not have been that interesting. Okay, liberals, radicals, and conservatives. One of the groups which looked to change society were the liberals. Liberals wanted a nation which tolerated all religions.
लाइक लिबरल्स वो ये चाहते थे कि सोसाइटी चेंज हो, and they wanted a nation that was secular. Okay, every religion shall be accepted. We should remember that at this time European states usually discriminated uh, in favor of one religion or another. Like, हाँ, लिबरल्स में ये बताया गया है कि उनको ऐसा नेशन चाहिए था जिनके जो रिलीजन्स हैं वो सारे के सारे टॉलरेट हों. एंड इस टाइम पे यूरोप में जो यूरोपियन स्टेट्स थी उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत कॉमन था रिलीजन्स में. जैसे ब्रिटेन में चर्च को फेवर दिया जाता था, एंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च को दिया जाता था. तो इट वाज नॉट secular at all. Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. Now, dynastic rulers are the ones that had complete, control over the country. So they opposed that no, you cannot have the control over us. You cannot make us do whatever you want to do. Okay, they wanted to safeguard the rights of individuals against governments. This is an important point, that they wanted a nation in which individual right was accepted, and every individual had their rights. They argued for a representative elected parliamentary government that was subject to laws and interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. Like, it was kind of a democracy, but they were not democrats because they were against universal adult franchisee, that is the right for every citizen to vote, and they felt like the men that had property should have the vote, and they did not want the vote of women, so they were not really that democrats. And on the other hand, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. Like, they wanted a government that was chosen by the majority of the country. Like, they also supported suffragette movements, like the vote for women, the right of vote to women. सो रेडिकल्स को ऐसी गवर्नमेंट चाहिए थी जिसमें जो मेजॉरिटी जो चाहती है वो गवर्नमेंट आए, एंड वो वुमेंस सफ्रगेट मूवमेंट्स को भी सपोर्ट करते थे. कि मतलब ऐसा नहीं है कि वुमेन को वोट, राइट टू वोट नहीं दिया जाना चाहिए. लाइक, दे वांटेड दैट एवरीवन इंक्लूडिंग वुमेन्स should have the right to vote. Unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. Like, liberals का क्या था कि जो लैंड ओनर्स थे उन्हीं को, जो मेन थे जिनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उन्हीं के पास वोट होना चाहिए. लेकिन रेडिकल्स ऐसे नहीं थे, उनको चाहिए था वो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, लेकिन दे डिसलाइक्ड दैट कि जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रॉपर्टी का वो किसी किसी के पास ही है. जैसे कोई तो बहुत बहुत पैसे वाला है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं और वगैरह वगैरह, और जो ऑन द अदर हैंड अ पर्सन इज स्ट्रगलिंग टू इवन ईट, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन है. लेकिन उसके बाद आता है कंजर्वेटिव्स. ये लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों से अलग चल रहे थे, ठीक है. तो आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने भी, मतलब उनको क्या था कि स्लो और ग्रेजुअल चेंज चाहिए था. लेकिन रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स को भी पता चल गया था कि हाँ भाई, चेंज तो चाहिए. 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे वो चेंज के आइडिया से थोड़े से नहीं अलग रहते थे.
बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज इनएविटेबल, कि मतलब हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सोसाइटी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, कुछ कुछ चेंज तो होगा ही होगा, इनएविटेबल है, रोका नहीं जा सकता। लेकिन उनको ये पता था कि पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट अ स्लो प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे चेंज होना चाहिए, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। ऐसे कुछ एकदम से पूरा चेंज हो जाए ऐसा नहीं हो सकता ना। लाइक उनको लगता था कि पास्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड उसके हिसाब से चलना चाहिए। सच डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट सोसाइटल चेंज, ये क्लैश हुआ। uh, हाँ, जो अलग अलग आइडियाज़ थे, कंजर्वेटिव्स अलग कर रहे थे, लिबरल्स को अलग चाहिए था, रेडिकल्स को अलग चाहिए था। तो ये जो अलग अलग आइडियाज़ थे फॉर सोसाइटल चेंज, ये तब क्लैश हो गए जब सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल हो, मतलब पूरा बदल गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। Industrial society and social change, like an important question uh, that can come to your exam is, what was industrial revolution and how did the society change? Like, it was when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded, and the industrial revolution occurred. Like, industrial revolution कब हुआ था? Industrial revolution, as the name suggests, it was when new cities developed. जैसे जो न्यू सिटीज़ थे वो खुद डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के पास जा रही थी। एंड जब न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स हुए जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खड़ी होने लग गई, रेलवेज़ आ गई, एंड और तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। लाइक इट इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब होगा, जब इंडस्ट्रीज सेटअप होंगे या फिर रेलवेज एक्सपैंड होंगे, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या चेंज किया? इट ब्रॉट मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये बड़ा वो हुआ था सोसाइटल चेंज कि उन्होंने वेमेन, मेन, जो भी थे, चिल्ड्रन, सबको फैक्ट्रीज में वो ले आया। जो वर्क आवर्स थे वो बहुत लंबे थे, और वेजेस, अब इनका ये था कि वो काम इतना करवाएंगे लेकिन पैसे बहुत कम देते थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जब इंडस्ट्रियल गुड्स की ज़रूरत ही नहीं होती थी तब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप हुई है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाने लगे। लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट तब आ जाती थी जब इंडस्ट्रियल गुड्स चाहिए ही नहीं होते थे लोगों को। जो हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग एंड टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। देखो, अगर टाउन्स एकदम से बड़े हो जाएंगे, मतलब डेवलप होने लग जाएंगे टाउन्स, तो ऑफ कोर्स जो हाउसेज और सैनिटेशन है वो प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि इतना तो मतलब एकदम से सब कुछ नहीं बदल पाएगा ना। तो जो सैनिटेशन और हाउसिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी लोगों को। जो लिबरल्स और रेडिकल्स हैं इन इश्यूज़ के ना वो ढूंढने लगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। Like, this is a picture of mid 19th century। जैसे कंटेम्प्रेरी था कोई, उसने ये डिपिक्ट किया है, लाइक पेंटिंग है आई गेस। Almost all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. अब इंडस्ट्रीज ना, सारी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती थी। रेडिकल्स और जो लिबरल्स थे ये खुद ही प्रॉपर्टी ओनर्स और एम्प्लॉयर्स थे। Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged, that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. अब उनको क्या लगता था कि जब ये खुद अपनी वेल्थ बनाते हैं ट्रेड और इंडस्ट्रीज में, तो उनको लगता है कि ऐसा एफर्ट जो है वो ना इनक्रेज होना चाहिए। मतलब उन्होंने खुद काम किया, पहले तो उनको पता नहीं था, तो उन्होंने खुद काम करके देखा, उनको लगा इनक्रेज होना चाहिए, क्योंकि जो इनके बेनिफिट्स हैं ये और भी बड़े होंगे अगर
जो इकोनॉमी है वो हेल्दी होती और जो सिटीजन्स है वो एजुकेटेड होते। तो यहाँ पर उनको पता लगता है कि ये जो इंडस्ट्रियल वेंचर्स हैं और ये जो ट्रेड है ये और भी ज़्यादा अच्छे तब होते जब इनकी इकोनॉमी, जो कंट्री की इकोनॉमी है वो हेल्दी होती, अच्छी। एंड जो सिटीजन्स है वो एजुकेटेड होते, लाइक एजुकेशन हेल्प्स, ठीक है, लाइक इट हेल्प्स द पीपल टू बिकम एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, वर्कफोर्स जो है ये उसकी बेनिफिट्स और बढ़ जाएंगे। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. अब इनको दिखता था कि जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी इनके पास जब उनका बर्थ होता था तभी से उनको प्रिविलेजेस मिलते थे। वो डिसलाइक करते थे उसको एंड उनको लगता था कि इंडिविजुअल एफर्ट जो है और लेबर और एंटरप्राइज को उसकी ज़्यादा वैल्यू मानते थे वो। उनके जो प्रिविलेजेस थे उनको उनको लगता था कि वो गलत है। If freedom of individuals was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believe that the societies would develop. Like, obvious है, अगर इंडिविजुअल्स का फ्रीडम इंश्योर किया जाता है और जो पुअर है वो लेबर में जा सकता है, जैसे इस टाइम पर जो लोग होते थे बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके। जो रिच थे उनको ज़्यादा फेवर मिलता था, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, और जो पुअर था उनको लेबर भी नहीं किया जाता था, लेबर भी करने को मतलब नहीं दिया जाता था। सो इट वाज देन जब रेडिकल्स लिबरल्स को सबको समझ आया कि जब अगर इंडिविजुअल्स का फ्रीडम ही नहीं होगा, जब कोई पुअर लेबर ही नहीं कर पाएगा और जिनके पास कैपिटल है वो ऑपरेट कर पाएंगे बिना रिस्ट्रेंट के, तब उनको लगा कि मतलब सोसाइटीज़ डेवलप कर जाएंगी। कि करना चाहिए ना, क्योंकि अगर पुअर लेबर नहीं कर पा रहे तो वो पूरे रह जाएंगे और मतलब दब जाएंगे उस सोसाइटी में। तो उनको लगा कि हाँ, सोसाइटीज़ डेवलप हो जाएंगी। मैनी वर्किंग मेन and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. जो वर्किंग मैन थे एंड वुमेन थे जिनको चेंजेस चाहिए थे, तो वो लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स में रैलीज करते थे एंड पार्टीज करते थे। क्या बोल रहे हो, लाइक वट एवर। Some nationalists, liberals, and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. So कुछ nationalists थे, कुछ liberals और जो radicals थे उनको revolutions चाहिए था कि ये जो गवर्नमेंट्स बन रही है भाई ये तो नहीं चलेंगी, इनको तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये 1915 में जो बनी गवर्नमेंट्स उनको समझ आ गया कि हाँ, मेरे को रेवोल्यूशन चाहिए और इनका एंड होना चाहिए। In France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and revolutions and worked to overthrow existing monarchs. तो मतलब जो फ्रांस, इटली और जर्मनी और रशिया थे ये दे चेंज इनटू रेवोल्यूशनरीज एंड दे वर्कड कि ये जो मोनार्क्स हैं इनको भाई ख़त्म करो, पुट एन एंड टू दिस मोनार्की एंड एवरीथिंग। Nationalists talked about revolution that would create nations where all citizens would have equal rights. उनको लगा कि नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने बातें की कि रेवोल्यूशन जो थे वो कोई ऐसा नेशन बनाएंगे जहाँ पे सिटीजन्स के पास इक्वल राइट होगा, लाइक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। आफ्टर 1815, Giuseppe Mazzini, an international nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists everywhere, including India, read his writings.
तो 1815 में एक इटालियन नेशनलिस्ट था और उसने कंस्पायर किया दूसरों के साथ, और उसने इटली में ये अचीव किया, ऐसा नेशन बनाया कि जहाँ पे हर सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स था। तो बहुत सारे नेशनलिस्ट जैसे इंडिया और बाकी जगह में ये उसकी राइटिंग्स को पढ़ा गया, बहुत अच्छी बात है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज सोशलिज्म एंड हु वर द सोशलिस्ट। लाइक perhaps one of the most far-reaching visions of how society would be structured was socialism. अब ये देखा जाता था कि जो सोसाइटी है वो स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, और इसका जो विजन था कि मतलब कैसे हो सकती है, उसको कैसे देखा जाता था कि हाउ कैन दिस बी चेंज्ड एंड हाउ कैन सोसाइटी बी चेंज्ड, लाइक स्ट्रक्चर्ड, ये सोशलिज्म था। सोशलिज्म by the mid 19th century, it was a well known body of ideas that attracted widespread attention. Like, of course, if I have an idea that is earth shaking, it would attract a lot of attention from everyone. So, socialism was kind of like that in mid 19th century in Europe. So, socialism was really popular at the time. Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. उन्होंने जो सोशलिस्ट थे उन्होंने देखा कि मतलब गॉड Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. Socialists प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। उनको लगता था कि जितना भी खराब हो रहा है ना सोसाइटी में, इसी की वजह से है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से सब खराब चल रहा है। क्योंकि जब इंडिविजुअल ओन करते थे प्रॉपर्टी को, वो जो Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. Like, they were against that, no, private property is not the one to be trusted, and it is the root. It is doing all the social ills in the society. Like, they were थिंकिंग कि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता था कि इंडिविजुअल्स जो प्रॉपर्टी ओन करते थे, जो कि उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट देती थी, जो जिसको प्रॉपर्टी मिलती थी, और वो खुद के अगेंस्ट पर फोकस करते थे कि दे वर फोकस्ड ओनली ऑन पर्सनल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, दे वर नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। लाइक, उनको लगता था ये तो मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। सो इफ़ द सोसाइटी एज एन होल rather than single individuals control property, उन सोशलिस्ट को ये लगता था कि if the property is owned by individuals, they concerned only about their personal gains and did not care about the workers that made the benefits of the individuals. So they thought if a society as a whole rather than single individuals controlled, कि मतलब अगर पूरी सोसाइटी मिलके एक प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रही है तो ज़्यादा अटेंशन दी जाएगी कि कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट जो है उसके पास जाए थोड़ा सा अटेंशन। तो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, उनको ये चेंज चाहिए था और फिर वो कूद पड़े। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? Socialists had different visions of the future. Some believed in the idea of cooperatives. Robert Owen, 1771 to 1858, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. Like, बहुत अलग अलग सोशलिस्ट थे और डेफिनेटली उनके अलग अलग विजन्स रहे फ्यूचर के लिए। तो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था रॉबर्ट ओवन, और उसको चाहिए था कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने न्यू हार्मनी, जिसका नाम हो इंडियाना में।
Or other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. अब दूसरे सोशलिस्ट को लगा था कि मतलब कोऑपरेटिव सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ नहीं जा पाएगी. अगर कोई बिल्ड कर रहा है कोऑपरेटिव को तो वैसे ही नहीं चल पाएगी. गवर्नमेंट को हेल्प करना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा. इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुई ब्लॉन्क wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas to this body of arguments. अब मार्क्स ने आर्ग्यू किया जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो कैपिटलिस्ट थी. मतलब जो कैपिटलिस्ट थे वो सारे कैपिटल जो फैक्ट्रीज में गई है और जो प्रॉफिट है वो वर्कर्स ने हेल्प किया और वर्कर्स ने वो प्रॉफिट गेन किया है. लेकिन कैपिटलिस्ट थे वो खुद ही उनको ले लेते थे. The conditions of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. अब सोशलिस्ट को तो पता था क्या हो रहा है. उन्होंने बोला कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है. मतलब जो भी कैपिटल बन रहा है, जो भी इन्वेस्ट हुआ है वो कैपिटल जो प्राइवेट ओनर्स थे वो खुद ही ले लेते सारा प्रॉफिट. अब जो वर्कर्स थे उनका क्या. तो उसको लगा कि जो वर्कर्स थे उनको कैपिटलिज्म बंद करना पड़ेगा और ये तभी जीत पाएंगे जब ये जो रूल है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कि मतलब इंडिविजुअल्स ओन करते हैं उसको हटाना पड़ेगा. और मार्क्स को लगता था कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं कैपिटलिस्ट सब वर्कर्स को. Workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. अब मार्क्स को लगता था कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसी सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहाँ पे जो सारी प्रॉपर्टी है उस सोसाइटी सोशली कंट्रोल करेगी. दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. उसने बोला कि ये जो सोसाइटी बनेगी ये जो सोसाइटी बनेगी तो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी. ही वाज कन्विंस्ड दैट जो वर्कर्स थे वो जीत जाएंगे इस कैपिटलिस्ट की कॉन्फ्लिक्ट्स में. और उसको लगता है जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी वो फ्यूचर की नेचुरल सोसाइटी थी. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. 1870s में जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे ये यूरोप में पूरी जगह फैल गए थे और इनके एफर्ट्स को थोड़ा सा इन कुछ तो एफर्ट्स करे ना इन्होंने, इसको थोड़ा सा मानते हैं चलो. इंटरनेशनल बॉडी बनाई सोशलिस्ट ने और इसका नाम था द सेकेंड इंटरनेशनल. Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. जो वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी में उन्होंने भी एसोसिएशंस बनाने कर दिए शुरू ताकि उनकी जो लिविंग है और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो कुछ तो बेटर हो. लाइक दे वर लिविंग अ लाइफ दैट वाज इक्विवेलेंट टू हेल्प. ओके, they wanted a better living and working conditions. They were working long hours and getting minimum wages. So they set up funds to help members in times of distress and demanding a reduction of working hours and the right to vote. अब राइट टू वोट उनके पास था जब जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी और जो मेन थे उनके पास था राइट टू वोट. तो उन्होंने क्या किया कि वर्किंग आवर्स को कम करना चाहिए और राइट टू वोट होना चाहिए सबके पास. इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प्ड इन विन पार्लियामेंट्री सीट्स. तो
जर्मनी में ये एसोसिएशंस साथ में वर्क करती थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के, और जो उसके पार्लियामेंट्री सीट्स थी उसको मतलब मदद करती थी कि मतलब तुम्हें को चाहिए सीट्स. By 1905, socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. अब 1905 में जो socialists और trade unionists थे, they formed a Labour Party ब्रिटेन में and a Socialist Party in France. लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट कभी सक्सीड ही नहीं कर पाए गवर्नमेंट बनाने में. तो रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज did shape legislation, but governments continue to be run by conservatives, liberals, and radicals. Socialists, they thought more of the society. उनको लगता था कि मतलब जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल्स के पास नहीं होनी चाहिए. दे वांटेड द प्रॉपर्टी टू बी कंट्रोल्ड बाय अ social they wanted the property to be socially controlled, right? They wanted to give attention to those that were actually helping in the development of the societies, but they never succeeded. Okay, their ideas did shape legislation, like the legislature was being shaped, but in the end the liberals, radicals, and conservatives won. So here it is the end of unit 1 chapter 2. Meet you in the next video where I will talk about the second unit of history. This was all for today. Thank you so much. Bye bye.